खड़ा हो एक मिनट खड़ो जोर से बोलना ओके Distinguished guests, esteemed faculty members, seminar event here at Mount Literacy School, Kathua. Today, we have gathered here to delve into a topic of great significance that has shaped the landscape of the region, the impact of industrialization on the ecosystem of Kathua. The purpose of this event is to explore the positive and negative effects on the local community and environment. For today's event, we have with us esteemed guest of honor, Mr. Murari Bhigra, District Agricultural Officer. Esteemed Chairperson, Rajiv Gandhi Group of Colleges, Mrs. Anu Dogra. Honorable School Principal, MLDs Kathua, Ms. Charu Andotra. MLDs Kathua, Ms. Mansi Dua. And the media person. Before we begin any further, may I request industrialization. Kathua, a region renowned for its natural beauty and rich heritage, has witnessed a remarkable journey gave a private future for Kathua. This seminar serves as a platform the impact of industrialization on the ecosystem of Kathua. So firstly, I'll tell you something about industries. You know, industries are the backbone of country's economy. They contribute a lot in GDP, that is gross domestic product. Spreading of industries ultimately leads to increase in employment and hence reduces dependency on other countries. Let me give you a famous example of Chenab Textile Mills, CTM, which is located in our own city, Kathua. And you know, it is one of the biggest producers of threads of fabrics in whole Asia. It dyes more than 150 tons of threads per day, which is a huge quantity. Currently, there are a total of 12 plants. With this, industrialization has certainly increased employment rates. But pollutants released by these textile industries are continuously doing unimaginable harm to the environment. One of the foremost concerns associated with industrialization is pollution. As industries expand, they release harmful emissions into the air, water, soil, leading to environmental degradation. The emission of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane contributes to climate change and its associated consequences, including industrial estate in village Sahar Limit, which is near our school only, and it covers an area of 900 canals. Of course, it will generate common people are suffering from various issues like respiratory illness, hearing loss, lung cancer, hair loss, and various other skin diseases. The construction is spreading a lot of dust, which can lead to various harmful diseases to the common people level, where bricks are made. Soiling and leads to soil depletion and hence and educate other about sustainable practices of agriculture and industry, like in future of Kathua and agriculture in future of Kathua. एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो होगा
हम फार्मर्स को जो भी इस्तेमाल करते हैं हमारे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि मिनिमम जो है पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो। तो इम्पैक्ट मैंने बोल दिया कि खाने में अगर मिलावट आ रही है ना, दूध में मिलावट आ रही है, इवन के जो बच्चा जब इन्फेंट होता है, इन्फेंट जो है जब वो फीडिंग करते हैं उसमें भी आ रही है, मिक्सर आ रही है ना। तो यही अवेयर करेंगे कम से कम वो जो है इसका भी वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें। और जो इंडस्ट्री हैं ये गवर्नमेंट ने उनकी पॉलिसी होती है, तो ये देखेंगे जो ग्रीन जो आचार्य एवं सभा में उपस्थित सहपाठियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कठुआ के कृषि और पारिस्थितिक तंत्र और शहरीकरण के प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस तरह है। औद्योगिक क्रांति ने न केवल देश की आर्थिक स्थिति को जन्म दिया, बल्कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का भी आविष्कार किया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक रोजगार और शहरीकरण हुआ है। कठुआ जिला जम्मू कश्मीर के विकासशील क्षेत्रों में से एक है। जब हम भारत में वस्त्रों के लिए सबसे ज्यादा उद्योगों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? सीटीएम, है ना? लेकिन हमारे कठुआ व जम्मू में अन्य विकासशील उद्योग यानी डेवलपिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे नेचुरल कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टीके पेपर कंपनी, J&K पल्प एंड पेपर लिमिटेड, कॉर्सेंटीना कॉयल मैन्युफैक्चरिंग, नदीम हैंडलूम और भी बहुत सारे। औद्योगिकरण ने विभिन्न व्यास आयोन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से जम्मू और कश्मीर इस क्षेत्र में सक्षम नहीं रहा है और औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य बना हुआ है, क्योंकि इसके अनूठी आर्थिक हानि और खराब कनेक्टिविटी से उत्पन्न होती है। पहाड़ी और दुर्गम रास्ते, कमजोर संस्थान आधार, खराब बुनियादें, उथले बाजार और भी बहुत कुछ। फिर भी खादी प्रसंस्करण, कृषि आधारित इकाइयों और धातु से गैर धातु उत्पादों जैसे कुछ नए क्षेत्र के साथ पारंपरिक क्षेत्र में लागू। As CTM is located in the residential area, so does it affect the health of the society in any way? ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। गवर्नमेंट ने जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो देखेंगे कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, राजस्थान में एरिया में लगाएंगे या कहाँ लगाएंगे, तो ये उनकी हाथ की बात है। एग्रीकल्चर का जो काम है वो हम फार्मर से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे 1 करोड़ 30 लाख का जो आबादी है, 70% जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी हुई है, इससे व्यवस्था है। तो हम बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा एग्रीकल्चर्स, अगर मीन्स वो होती है लैंड, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। तो आपको पता है पहले जो इंसान था वो क्या करता था, पहले हंटिंग करता था, वाइल्ड जो प्लांट्स थे उसको इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई, जैसे डोमेस्टिक एनिमल जो है वो उसको पालना शुरू किया, फिर मॉडर्नाइजेशन हुई, तो चेंज आती गई। हुआ क्या, इंसान जो है ना वो अपने पेट के लिए बहुत कुछ करता है, करते करते वो क्या किया, उन्होंने हमारी जो नेचुरल थी ना, नेचर थी, इसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय उन्होंने अपना थोड़ा मतलब देखा इंसान ने। तो जो डिस्टर्बेंस हुई, इससे क्या हुआ, ये जो आज इन्वायरमेंट डे जो मना रहे हैं आप लोग, ये मनाने की कोई जरूरत पड़ी, इसीलिए पड़ी क्योंकि हमने जो है इसके बारे में सोचना है, करना क्या है। अब जो इन्वायरमेंट है इसको कैसे, देखो खराब तो हमने किया, खराब हमने किया, अब इसी पे विचार हो रहा है। आज हमारे जो देश की जो हमारे बच्चे हैं, अब आपके हाथ में इन्वायरमेंट को आप कैसे इसको रखोगे, ठीक रखोगे। देखो एकदम गर्मी हो जाती है, एकदम ठंड हो जाती है, होता ना, पहले थोड़ा असर होता, चेंजिंग आ रही है। पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन है तो किसने बनाया, हमने बनाया। हमने आज विचार करना है कि जो जिस जगह हम इस धरती में रह रहे हैं, इस धरती को कैसे बचाव करें, हमें क्या करें हम, ताकि हम अपने लिए अब आने वाले जो समय है, बच्चे हैं, उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हमने एक अच्छा इंसान बनना है।
आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस दुनिया में आगे ना सारे क्या छोड़ना है यहाँ पे, है ना? हमारा फर्ज बनता है कि हम भी सोचते हैं हम क्या छोड़ेंगे यहाँ पे। तो मिलके हमने कोशिश करी है। जैसे अकॉर्डिंग टू अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक देखना होगा 20,000 लोग जो है ना वो पुरुष के कारण बन रहे हैं, इंसेक्टिसाइड के कारण बन रहे हैं, पेस्टिसाइड के कारण बन रहे हैं। 40 से 45,000 लोग जो है वो इन्फेक्टेड है। आप यकीन मानना पंजाब में एक मालवा शहर है, वहाँ पे उसको घोषित कर दिया है एज कैंसर सिटी, जो कहते हैं ना वो कैंसर सिटी है। मजबूरी थी, बाहर से मंगवाया उन्होंने, हाइब्रिड बीज मंगवाए, फॉर्मेटेशन की, तो यूरिया डाया पोटाश भी डाला प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते तो हमारे यहाँ पे सारे लोग भूखे मर जाते। लेकिन उन्होंने कहा क्या था, उन्हें कहा था इसकी जो बैलेंस डोज देनी है, बैलेंस डोज देनी है, यूरिया डाया पोटाश को बराबर हिस्से में देना है। जैसे किसी बच्चे को या किसी को इंसान को बुखार हो जाए, जुकाम आ जाए, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, है ना, एलर्जी वाली देंगे, जुकाम वाली दवाई देंगे, तभी ठीक होगा। यूरिया जमीन को क्या करना, यूरिया डाया पोटाश कटने देंगे। तो ये जो उसकी असर था ना वो खुराक द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रहे हैं, जो हमारी न्यूट्रिशन थी ना फार्मिंग उसी भी आ रहे हैं दोबारा। पहले बुजुर्ग हमारे उनको बीमारी काम करती थी, वो नेचुरल चीजें आती। जैसे हमारा प्रोडक्ट है किसी का मिल्क प्रोडक्ट लगा दो, 60 जो है मिल्क प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे 14 करोड़ लीटर जो है वो प्रोडक्शन है। तो जो कंजप्शन है वो 64 करोड़ लीटर है। तो जो 50 करोड़ है वो कहाँ है, वो इसमें हो रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पे हमने इस जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा धरती है, इसको हमने संभालना है, एक अच्छे इंसान बनना है, अपने समाज के लिए छोड़ना है, हर चीज़ छोड़िए। तो एक कहानी के साथ आपको सुनाओ। देखो आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नहीं सुना? जो पेनिसिलिन जो डिस्कवर किया था किसने किया था? उन्होंने किया था ना। क्या था? स्कॉटलैंड में जो